in this today's in part 3 of this diabetic endocrinology, we will see what are the diabetic emergencies. Emergencies are very important, right? So diabetic emergency. So whenever we hear this word diabetes, the first thing comes low blood sugar, hypoglycemia we call that, right? So it is the low blood sugar or hypoglycemia. Okay, so inside your blood, okay, the glucose level, the level of the glucose, okay, it's there, but it is not used by basically the cell, and cell coils are not like functioning, and because of that we feel the symptoms that is called low blood sugar. So low blood sugar, so what you feel during the low blood sugar, like uneasy feeling, we feel sweating, we feel like sweating. Why there is a sweating during the low blood sugar, right? That is also important, right? So whenever there is a low blood sugar, your body's flight and fight response, okay, so flight and fight response, okay, stimulated. What is meant by flight and fight response? Okay, so this flight and fight response is stimulated by the adrenaline, okay, adrenaline, okay, or epinephrine or noradrenaline, right? So we already know there are two type of response, okay, one is flight and fight, which is stimulated by, that is which one, adrenaline or noradrenaline, and another is by acetylcholine, okay. So this is a calm, okay, and this one is the flight and fight response. And because of that adrenaline or epinephrine, there is a increased sweating, shakiness, shake hota hai na body, right? So why there is a shakiness, why there is a sweating, why there is a increased anxiety, we should know the reason. That is also important, right? Sugar कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, sweating क्यों हो रहा है, basically shakiness क्यों हो रहा है, anxiety क्यों बढ़ रही है, basically that is because flight and fight response gets stimulated by secretion of or by adrenaline, right? So this is about the first one, why there is a sweating, why there is a shakiness, why there is a anxiety, right? Sometime it will land up into the seizure, okay, sometime it will land up into the seizure, or you can say unconsciousness, or you can say brain damage, okay, so seizure ho unconsciousness, damage to the brain, or it can lead ultimately to death also, okay. So these are kind of like what happened because of the low blood sugar, right? And then your cell are not getting enough glucose, okay, the glucose is the source of energy for them. If they are not getting the glucose for the source of energy, right, so they need that energy, and that's why they stimulate your brain, right? And along with that they got a fatigue, उनका काम धीरे 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 स्लो हो जाएगा, right? So they need more and more oxygen, because for that there is a rapid breathing, there is a rapid breathing to compensate the low blood sugar mechanism, rapid breathing. ये sweating वगैरह तो इसमें आ गया, right? Secretion जो increase हो रहे हैं आपके, इसमें आ गया, right? So rapid breathing, why there is a rapid breathing, okay? Cold skin हो जाएगा, right? So ये सारे आपको कब मिलेंगे? Whenever there is a low blood sugar, right? Why there is a low blood sugar? There are certain reason. If you eat or eat less than your body requirement, this is one thing, right? Second, if you inject the glucagon, और वो आपको already पता है glucagon क्या करता है, इंसुलिन कम कर देगा, right? So severe because of the injection of glucagon, right? So this is all about your which one, that is a low blood sugar or hypoglycemia. It is one of the kind of diabetic emergency, right? Usually if you see, there is one more that is called diabetic ketoacidosis. एक और हम लोग देखते हैं diabetic ketoacidosis, and that diabetic ketoacidosis usually you can see in type 1 type of diabetes mellitus. कौन से diabetes mellitus में? Type 1. That is also important, right? So दूसरा कौन सा emergencies में आएगा? Diabetic ketoacidosis. Whenever I said emergencies, it need
immediate treatment. It need the immediate treatment. It is not like कि चलो भाई आपका शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा मेंटेन करते हैं, डाइट थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं, कुछ मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं. नो, डायबिटिक इमरजेंसीज आर इमरजेंसी. इट शुड बी ट्रीटेड ओके एज इट इट विल डायग्नोस. तो ये बहुत जरूरी है, राइट. सो यूजुअली along with type 1 diabetes mellitus, there is one emergency which is called diabetic ketoacidosis. It is called diabetic ketoacidosis, right? So what exactly happened in diabetic ketoacidosis? It is like a metabolism. There is a disturbance in metabolism. Okay, क्या हो गया? जो मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा. Because of the disturbed metabolism of the glucose, there are certain signs and symptoms like nausea हो गया, vomiting, pain in abdomen, okay, pain in abdomen है, right. And this patient, they have special breathing, okay, they have a special breathing smell, okay. So इनकी breath को एक smell रहता है special. From that smell, you can identify this patient is in diabetic ketoacidosis. And this smell is of acetone. Okay? Ketone, that is diabetic ketoacidosis. So the smell is of acetone. The smell is of acetone, right? So what happened in case of this emergency diabetic ketoacidosis? Our body, इसे जो कार्ब मिलता है, नॉर्मली जो कार्ब है ग्लूकोज है विच इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है और हमारे सेल फंक्शनिंग करते हैं. सो अगर वो नहीं मिल रहा है, राइट, ओके, वी डोंट गेट द कार्बोहाइड्रेट विच इज द बेस्ट सोर्स और बेस्ट करेंसी फॉर द एनर्जी, तो बॉडी विल स्विच. बॉडी क्या करती है, वो अगर नहीं मिला, then our body switch to fatty acid. तो कार्ब नहीं है तो क्या लेंगे, body switch to fatty acid. And whenever body start metabolizing fatty acid, there is a release of ketone. There is a release of ketone or ketone bodies. There is a, or they produce, you can say release से हम लोग बोल सकते हैं. Okay, after the fatty acid metabolism, they produce the ketone. And because of that ketone, okay, there is a acidic environment inside our body, that acidic nature or acidic pH inside our body, and that is why it is called diabetic ketoacidosis. Okay, and such breathing, okay, inside that, because of that what happened, the patient का जो breathing रहता है वो बहुत deep हो जाता है, right. Deep breathing, inhalation and exhalation, deep breathing हो रहा है. What do you call this deep breathing? This deep breathing is called Kussmaul's breathing. This deep breathing because of diabetic ketoacidosis or because of the breakdown of fatty acid, and there is a release of ketone bodies, and because of that ketone body there is an acidic environment inside our body, and before maintaining that, okay, our body start getting more and more oxygen बहुत ज़्यादा चाहिए, right. So we start, our body का जो mechanism है, it will start breathing deeply, और उस breathing को specifically हम लोग क्या बोलते हैं, Kussmaul breathing. What do you call? It is called Kussmaul breathing. Okay, this Kussmaul breathing, it is one of the sign of that is diabetic ketoacidosis. ये जो breath है, कौन सा ब्रेथ है, जो स्मेल है ब्रेथ का, एसीटोन का जो स्पेसिफिक स्मेल है वो आपको देखने मिलेगा whenever you come to the patient. And whenever this all sign and symptoms you can see in case of diabetic ketoacidosis, the level of consciousness of the patient also, okay, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट. ये सब कुछ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बाद में धीरे धीरे जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो कम हो जाएगा. ओके, सो एज पर द गैस ग्लूकोमा स्केल हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, वो हमारा दूसरे चैप्टर में होगा. अभी हमको सिर्फ इतना देखने की हो क्या रहा है, कौन सी इमरजेंसीज है. एंड दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी यूजुअली कॉमन इन केस ऑफ विच वन, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. तो एक हो गया आपका हाइपोग्लाइसेमिया, सेकंड हो गया आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. सो ये इमरजेंसी आपको पता होनी चाहिए. हर इमरजेंसी का डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट रहेगा एज पर द साइन एंड सिम्टम्स एंड एज पर द कॉज, हाउ यू कैन ट्रीट द इमीडिएटली, हाउ कैन ट्रीट इट इमीडिएटली, राइट.
Now there is one more thing which is given in your book, that is called hyperosmolar state. It is called hyperosmolar state. ये सब पढ़कर बहुत डरने की जरूरत नहीं है. जस्ट whenever you read something from your book, hyper increase osmolarity, right? And state is that particular condition. Okay, hyper यानी आपको पता है ज्यादा हो गया. Osmolarity when you already know what is osmolarity or what is osmosis. Okay, so osmosis, okay, from higher concentration to lower concentration जब movement होता है, okay, so whenever it moves from higher concentration to lower concentration, उसको हम लोग osmosis बोलते हैं. और हमको ये भी पता है through the semi permeable membrane. ऐसा कुछ बॉडी के सेल में और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऐसा कुछ होता होगा. बिकॉज ऑफ दैट हाइपर ऑस्मोलर स्टेट देयर माइट बी सर्टेन कंडीशन, और उस कंडीशन की वजह से हमें एक थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी फेस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर स्टेट. It is also called hyperosmolar non-ketotic state. It is also called hyperosmolar non-ketotic state. So what happened here? Because of high blood sugar, hypoglycemia, low blood sugar, that is a different, right? Okay, अब ये है because of the high blood sugar. Okay, क्या होगा? Inside the blood, the sugar molecule, ये जो है वो बहुत ज्यादा है. तब हम लोगों ने क्या देखा था? शुगर मॉलिक्यूल कम थे, राइट? बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल है. सो whenever there is any molecule, like any molecule, you can call this molecule as a solute. इसको हम लोग बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल को सोल्यूट, और जो ब्लड है, जो मीडियम है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट. क्या बोलेंगे हम इसको? सॉल्वेंट. And together solute plus solvent is called solution. So your blood is just like the solution, right? So क्या है आपके ब्लड में अभी? सोल्यूट ग्लूकोज है. हमारी कंडीशन कौन सी है? हाई ब्लड शुगर. सो 100% कौन सा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है? सोल्यूट या सॉल्वेंट? वॉल्यूम प्लाज्मा और उसमें ब्लड का तो इंक्रीज नहीं हुआ. इंस्पाइट ऑफ दैट सोल्यूट इंक्रीज हो गया. मीन्स क्या इंक्रीज हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल. Solute increase हो गया. And what happened? Because of that, whenever this blood undergo the filtration, right, in the nephron or inside the kidney, you already know the structure of nephron, right? So these are the glomerulus. This is the glomerular cup. Okay, this is proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. Okay, distal convoluted tubule ये collecting duct है. बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें ओपन हो जाते हैं, राइट? एंड हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ यूरिन. ये आपके किडनी में रहेंगे ये, राइट? सो किडनी का आपको स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल पता है, राइट? इट इज कवर्ड विद द कैप्सूल. ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है एनाटॉमिकली, राइट? और देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन. वन इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में रहते हैं, एंड सेकंड इज कॉल्ड, यूजुअली पीपल इट कॉल्ड ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, यानी उनको बोलना है कि मेडुला में है, या मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला. बट वो मेडुला में नहीं, जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला के पास रहते, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, राइट? सो नॉर्मली देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो हम लोगों को पता है. नेफ्रॉन जो है, देयर आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स में रहते हैं, और दूसरा मेडुलरी. लेकिन मेडुलरी जो है वो मेडुला में नहीं रहते, दे आर प्रेजेंट जक्स्ट्रा मेडुलरी. जक्स्ट्रा ने जस्ट क्लोज टू द मार्जिन ऑफ द मेडुला. तो ये है मेडुला, तो यहाँ पर रहेंगे. और ये जो मेडुलरी पिरामिड है उसमें ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब रहेंगे इस तरह से. इसीलिए तो हम लोग जब किडनी का सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से हमें एनाटॉमिकली ये देखते पैरेलल लाइन. दिस पैरेलल लाइन इज फॉर्म बाय लूप ऑफ हेनले. और यहाँ पर आपका रीएब्जॉर्प्शन, राइट, सिक्रेशन, ये सारी चीजें होगी यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद में. तो ये ब्लड है, ये आएगा एफ्रेंट से और निकलेगा इफ्रेंट से, राइट? सो यहाँ पर जब ये ब्लड जाएगा आपका ये वाला, सो देयर इज अ फिल्ट्रेशन. और फिल्टर होने के बाद बहुत सारी चीजें रीएब्जॉर्ब होगी, कुछ सिक्रेट होगी, ओके, वाटर
यहाँ पर बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ योर एडीएच हार्मोन, ओके, आपका बॉडी एडीएच हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर वाटर ज़्यादा बाहर जाने देना या कम जाना देना है वो कंट्रोल करेगा, राइट। सो हियर देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन, जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तैयार करना है या डाइल्यूटेड यूरिन तैयार करना है, यहाँ पर डिसाइड होगा, राइट, इनसाइड द मेडुला ऑफ द किडनी एयर, ओके। सो होता क्या है, इफ मोर एंड मोर वाटर गोज इनसाइड, व्हाट हैपन, यूरिन बिकम डाइल्यूटेड और ये पूरा बाहर निकल जाएगा। नहीं अगर आएगा, राइट, अगर नहीं अगर आएगा इसमें से तो यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग का एक मैकेनिज्म है, राइट। वी विल कंट्रोल, हमारा ये बॉडी कंट्रोल करती है, राइट, कि बॉडी, अब हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं, राइट। सो बॉडी में अगर वाटर कम है सो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, सो यूरिन के साथ ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा। दैट इज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, वो जो, तो ये हम लोग किडनी पार्ट में हम लोग देखते हैं। हियर why I am saying this, because there is a word osmolarity, there is a word osmolarity. What happened here, high blood sugar, okay, they causes dehydration. Why it causes dehydration? During the filtration and formation of urine, more amount of this solvent comes out of your body. क्या हो जाएगा, ब्लड में सोल्यूट ज्यादा है और बाहर सोल्यूट कम है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर ऑस्मोसिस में चला जाएगा, राइट, एंड मोर वाटर कम्स आउट, राइट। सो क्यों हो रहा है, क्यों डिहाइड्रेशन हो रहा है, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई देयर इज अ डिहाइड्रेशन, राइट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, इसकी वजह से क्या हो गया, डिहाइड्रेशन होगा, राइट। ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज ग्लूकोज वो बढ़ गया है, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा, राइट, सो देयर इज इंक्रीज एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन, राइट। सो इंक्रीज एक्सेसिव यूरिन, जितना ज्यादा यूरिन फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। एंड दिस स्टेट को हम लोग बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। तो ये भी दिस इज वन काइंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड द इमरजेंसी इन केस ऑफ डायबिटीज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, यू नीड टू नो कैसे ट्रीट करना है। अगर डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। हाई ब्लड शुगर है तो उसको कम करना पड़ेगा, राइट। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो आपको शुगर देना पड़ेगा। एवरी एंटाइटी हैज अ डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ओके। नाउ वी विल सी द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म, क्या होते हैं लॉन्ग टर्म डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, राइट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज लाइक द फुट अल्सर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको हम लोग डायबिटिक फुट बोलते हैं। ये है लॉन्ग टर्म में, आज डायबिटिक डायग्नोस है और कल आपको डायबिटिक फुट हो जाएगा, ऐसा नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, राइट। सेकंड, सबको पता है, डैमेज to blood vessels, right, blood vessel. Second is damage to the blood vessel, right. So क्यों damage होता है, right. So if these are the blood vessels, tunica externa, और ये जो muscular है tunica media, and these are the endothelial cell, okay, intima with one elastic layer, okay. So because of damage to blood vessel, what happened exactly, there is an increased risk of heart diseases. अब heart diseases क्यों, coronary artery, उसको अगर कुछ ब्लॉक हो गया तो coronary artery disease हो सकता है या cardiovascular disease हो सकते हैं. Patient can also land up into stroke. Okay, cerebrovascular episode, patient can also land up into the stroke also, right. And we already see one, like जो terminal branches रहते, right. So if it is a artery, then it is the arteriole, and then it is the टर्मिनल आर्ट्रियोल, ओके. सो ये जो टर्मिनल आर्ट्रियोल रहते हैं इसको हम लोग एंड आर्ट्रियोल बोलते हैं, इसको हम लोग एंड आर्ट्रियोल बोलते हैं, राइट. सो द डैमेज टू द arteriole, राइट. सो यूजुअली in the eye there is a small vessel damage, right. small vessels, eye में जो रेटिना है जिसको सप्लाई रहता है, that is called small vessel eye damage. जरूरी नहीं है कि आई में है, किडनी में भी होगा, राइट.
किडनी में भी होगा, नर्व्स में है, रेटिनोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नेफ्रोपैथी हो गया, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आई और किडनी, राइट, एंड नेफ्रोपैथी हो जाएगा उसके वजह से, ओके, डिजीज ऑफ द किडनी, राइट. सो व्हाई देयर इज अ नेफ्रोपैथी, देयर इज अ स्कारिंग ऑफ, क्या पैथोलॉजी होती है किडनी में, देयर इज बेसिकली द स्कारिंग इन द टिश्यू ऑफ किडनी, जो सेल को मिल नहीं रहा है, बेसिकली जो सेल डिप्राइड हो गए बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ द डायबिटिक, राइट. सो वो सेल का पर्टिकुलर स्कारिंग हो जाएगा, और देन देयर इज अ प्रोटीन लॉस हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ प्रोटीन लॉस, ओके. सो इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोपैथी, राइट. नाउ वी ऑलरेडी सी द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में फुट अल्सर हो गया, राइट. एट्रोपी, मसल एट्रोपी हो जाएगी, राइट. मसल एट्रोपी, वेस्टिंग ऑफ जिसको बोलते हैं हम लोग, मसल प्रोटीन जो रहता है, राइट. सो मसल जो प्रोटीन है, मायोग्लोबिन, ऑल दिस मसल प्रोटीन, ओके, इनका वेस्टिंग हो जाएगा, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मसल एट्रोपी. ये सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है. व्हेनेवर यू लुक एट दैट पर्टिकुलर पेशेंट ऑफ द डायबिटिक, आपको उनके जो लिम्स देखो ऐसे वेस्टिंग दिखते हैं, कैसा दिखता है वहां पर, वेस्टिंग दिखते हैं, राइट. व्हाई देयर इज अ डायबिटिक फुट, ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा there is a wound and that wound got infected. wound क्या हो जाएगा, infected हो जाएगा, right, and because of infection that infected wound become deep, goes up to the bone तक जाएगा डेप्थ में, right, and then you will get the osteoarthropathy, then you will get the bone infection जिसको हम लोग बोलते हैं osteo और ऑर्थोपैथी, राइट. सो देयर इज अ पैथोलॉजी इनसाइड योर बोन. तो ये होता बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डायबिटिक फुट. क्यों हो रहा है ट्रॉमा टू द वुंड? वैसे तो इट इज नॉट इजी टू गेट अ ट्रॉमा टू द वुंड कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, और ट्रॉमा होने के बाद हम लोग उसका इमीडिएट केयर कर लेते, राइट. यानी ट्रॉमा हो गया, इमीडिएट हम लोग वो केयर करते. लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी, because of the diabetic neuropathy, what exactly happened, there is a लॉस ऑफ सेंसेशन. क्या हो जाता है, हमारे जो फुट के है वो सेंसेशन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं या कम हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ देयर इज ए ट्रॉमा, सेंसेशन लॉस होने के बाद अगर ट्रॉमा हो रहा है, वी डोंट नो, हमें बहुत टाइम तक समझ में नहीं आ जाता. व्हेन इट विल बी मोर इन्फेक्टेड देन वी कम टू नो कि अरे कुछ लगा है करके, राइट. सो दिस इज द रीजन दैट ट्रॉमेटिक वुंड गेट मोर इन्फेक्टेड, राइट. तो इमीडिएटली पेनफुल नहीं रहता बिकॉज ऑफ द न्यूरोपैथी. So if you see the neuropathy in case of diabetes, there are various type of neuropathy. है क्या है न्यूरोपैथी, नर्व में क्या पैथोलॉजी होता है वो हम लोग देखते हैं. ये सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, हमें देखना है कि नर्व्स में क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी न्यूरोपैथी रहती है, क्या होता है बेसिकली नर्व्स में. नर्व है क्या बेसिकली, नर्व्स आर द सेल, राइट. बेसिकली नर्व्स आर द सेल. हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे सब लोगों ने, ये नर्व्स रहती है, राइट. ये सेल बॉडी है, एक्सॉन, ओके, एक्सोनल बल्ब, ये डेंड्राइट्स है. तो ये पर्टिकुलर एक सेल है, राइट. इट इज माइलिनेटेड और इट इज नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड अगर रहा तो यहाँ पर नोड्स रहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर. कंडक्शन फास्ट होता है, ऐसे फास्ट कंडक्शन को हम लोग साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि जंप करना है, इंपल्स को यहाँ से यहाँ जंप करना है तो फास्ट हो गया. तो ये आपके सेल हो गए, न्यूरॉन, ओके. इनका पैथोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथोलॉजी. क्यों होता है डायबिटिक में न्यूरोपैथोलॉजी, राइट. सो इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल. एक ही फैक्टर है नहीं कंफर्म. व्हाई देयर इज अ न्यूरोपैथी, इट इज द मल्टीफैक्टोरियल, ओके. सो सबसे पहले इस नर्व को जो सप्लाई होगा स्मॉल वेसल से, ओके, देयर इज अ ऑक्लूजन. पहला है ऑक्लूजन टू द ब्लड सप्लाई. अब सेल है तो ब्लड सप्लाई लगेगा, राइट. और वो जो नर्व को सप्लाई होने वाले जो ब्लड्स रहते हैं, जो वेसल रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा वेसोरम. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा वेसोरम. सो पहला एक रीजन है मल्टी फैक्टर में, पहला एक फैक्टर है बिकॉज ऑफ द डायबिटिक देयर इज अ ऑक्लूजन टू द ब्लड सप्लाई, okay, to the nerve or nervous tissue or nervous that particular cell.
किसका ऑक्लूजन हो रहा है? वासा वैसोरम का। ओके, वैसोरम बोलो या अब वेसल, जैसे वेसल को भी देखो, ये जो है वेसल, एक्चुअली यहाँ वासा वैसोरम की जगह बेस्ट वर्ड है वासा नर्वोजम। सो व्हाट इज वासा वैसोरम और व्हाट इज वासा नर्वोजम? अब ये जो ब्लड सप्लाई है, ये जो ब्लड वेसल है, दिस इज द ब्लड वेसल, राइट, एंड दिस इज द नर्व। सो बेसिकली यहां पर भी बहुत सारे मसल सेल है, इंटीमा में, मीडिया में, राइट। तो अंदर से तो ब्लड सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन, लेकिन ये जो बाहर के जो सेल है जिन्होंने ट्यूनिका एक्सटर्ना बनाया, मीडिया बनाया, इसको भी स्मॉल वेसल सप्लाई रहते हैं, इनको भी स्मॉल वेसल सप्लाई रहेंगे, राइट, जिसको हम लोग वासा वैसोरम बोलेंगे। किसको? वेसल के लिए। सेम नर को भी सप्लाई रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा नर्वोजम। ये जो स्मॉल वेसल है ये ऑक्लूड हो जाते हैं इन केस ऑफ डायबिटिक। तो क्या होगा, इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा नर सेल को या जो भी है वेसल सेल को। तो अगर नर्स ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज जो भी है नहीं मिलेगा, और मेटाबॉलिज्म उस पर्टिकुलर सेल का हैम्पर्ड हो जाएगा, एंड द सेल स्टार्टिंग टू डिक्लाइन इन फंक्शन। हो सकता है सेल का डेथ भी हो जाए। ओके, हम लोग बोलते हैं कि नर्व जो डीजेनरेशन है, नेफ्रोपैथी इज इरिवर्सिबल। जब तक पूरा सेल का फंक्शन चला नहीं जाएगा तब तक, ओके, इट इज इरिवर्सिबल। यानी एक बार सब कुछ पूरा सेल डेड हो गया, देन इट इज इरिवर्सिबल. So if you find that there is a occlusion in the blood supply to the vasa nervosum, and because of that nerve cell started getting degenerated हो गया, या nerve cell धीरे धीरे degeneration nerve का start हो गया सेल का, तो क्या करेंगे, इनिशियल पीरियड में अगर ट्रीटमेंट मिला तो हो सकता है रीजनरेशन पॉसिबल है, लेकिन पूरा अगर सेल डैमेज हो गया नर्व सेल तो रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन. तो एक फैक्टर हो गया ऑक्लूजन ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, वासा वैसोरिज्म. ओके, उसके बाद ये जो ब्लड सप्लाई है, सेकेंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन. सो एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, उसका अगर डिसफंक्शन हो गया, ये जो ब्लड वेसल है जो नर्व को सप्लाई करते हैं या पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, राइट, ये जो एंडोथेलियल सेल है इनका डिसफंक्शन, ये फंक्शनल नहीं रहना, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ न्यूरोपैथी. ओके, सो थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ मायोइनोसिटॉल also causes decreased myelin synthesis. So that is why I said neuropathy is multifactorial. एक तो ऑक्लूजन ऑफ ब्लड सप्लाई कौन से, वासा नर्वोजम, राइट. सेकंड, एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हो जाएगा, ये भी एक कॉज हो सकता है न्यूरोपैथी का. थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ मायोइनोसिटॉल, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन माइलिन सिंथेसिस. सो ये माइलिनेटेड नर्व में जो डीमाइलिनेशन हो रहा है उसका डिक्रीज माइलिन. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरोपैथी, you should know there are so many types of neuropathy. Particularly there are four types of neuropathy. हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं कौन से न्यूरोपैथी है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ओके, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल पॉली neuropathy. Okay, so once this peripheral neuropathy develop or distal polyneuropathy develop, right, so there is not really the cure of that. इसका कोई क्योर नहीं. न्यूरोपैथी हो गई यानी नर्व डैमेज हो गया, रीजनरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. मैंने पहले ही बोला था कि नर्व सेल अगर इनिशियल स्टेज में अगर फंक्शनिंग कम कर रहे हैं तो वहां हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट वंस द नर्व सेल डैमेज तो उनका रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट. पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज लाइक अ डिस्टल पॉलीन्यूरोपैथी, राइट. सो फ्यू क्यूर्स आर अवेलेबल. ओके, सो दिस इज वन, फर्स्ट वन. सेकेंड इज proximal neuropathy. What is proximal neuropathy? It is diabetes mellitus amyotrophy. What is DM amyotrophy? DM amyotrophy, it is for muscle wasting.
इट इज कॉल्ड मसल वेस्टिंग. सो मसल का जो नर्व है, जो नर्व सप्लाई है, उसमें पैथोलॉजी आ गई और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, मसल वेस्टिंग देखेंगे. तो पहला हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्टल लोअर लिम ज्यादा है, राइट. प्रॉक्सिमल में कौन सा है, प्रॉक्सिमल याद रखना है. सो दिस इज अ डिस्टल एंड दिस वन इज प्रॉक्सिमल. डायबिटीज मेलाइटस अमायोट्रोपी जिसको बोलते हैं मसल वेस्टिंग है. थर्ड इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी. आप नाम में ही लिखा है, व्हाट इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी. ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो आपके बॉडी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्वेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्सपिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, राइट. तो ये जो सारे फंक्शन है, इनका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा कंट्रोल. इनका जो कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल, वो डैमेज हो जाएगा. और दैट इज व्हाई दिस बॉडी फंक्शन गेट हैम्पर्ड. ओके, सो दिस इज योर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिसमें हमको हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ओके, सो लाइक डाइजेशन वाले ये सारे प्रॉब्लम, ओके, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग, ये वाले जो है ये प्रॉब्लम दिखेंगे. देयर इज वन फोर्थ वन विच इज कॉल्ड फोकल न्यूरोपैथी. फोकल यानी एक पर्टिकुलर साइट पे. ओके, सो सिंगल नर्व अगर डैमेज हो रहा है, सिंगल नर्व पर्टिकुलर मसल को और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को जो सप्लाई करता है, बिकॉज ऑफ लाइक एनी ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है. ओके, सो उस पर्टिकुलर ग्रुप का मूवमेंट या सेंसेशन लॉस हो जाएगा, राइट. सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोपैथी दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द डायबिटीज. एक तो फर्स्ट वाला पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कॉमन है, डायबिटीज. डिस्टल पॉलीन्यूरोपैथी हम लोग बोलते हैं उसको, जैसे डिस्टल है, प्रॉक्सिमल भी है, प्रॉक्सिमल अमायोट्रोपी. ओके, दैट इज द मसल वेस्टिंग, उनका नर्व सप्लाई. ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वाले जो हार्ट को, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रेशन को, उसका उनको जो नर्व सप्लाई उसका डैमेज होना, या फोकल यानी पर्टिकुलर नर्व. सो ये हो गया आपका इन शॉर्ट न्यूरोपैथी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटिक फूड, तो न्यूरोपैथी आता है, और उस न्यूरोपैथी के हम लोगों ने टाइप देखे, राइट. सो ड्यू टू द परसिस्टेंट पेरिफेरल नर्व डिस्फंक्शन, ये जो पेरिफेरल नर्व जो डिस्फंक्शन है ये परसिस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद तो ये ठीक नहीं होगा, राइट. सो देयर इज अ रिड्यूस एबिलिटी टू फील द पेन. टू फील द पेन का जो परसेप्शन जो है, हमारी बॉडी जो पेन परसीव करती है, वो फील कम हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई ट्रॉमा हो भी गया तो पेन नहीं परसीव होता है और इग्नोर हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई दैट ट्रॉमा वुंड जो है बाद में इन्फेक्शन में चला जाएगा और डायबिटिक फुट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वीट. क्यों हो रहा है न्यूरोपैथी, व्हाट द रीजन, कौन से टाइप है, परसिस्टेंट के बाद पेन कैसे जा रहा है, राइट, और उसके बाद वुंड कैसे इन्फेक्ट हो रहा है, राइट. तो इसीलिए जो माइनर इंजरीज रहती है, ओके, माइनर ट्रॉमा है, वो पता ही नहीं चलते, राइट. और नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल्स, पुअर ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पर, ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, राइट. लोअर लिम, ओके, सो परसिस्टेंट स्टैंडिंग रहेगा, राइट. सो पुअर ब्लड फ्लो टू अगर एक्सट्रीमिटी हो रहा है, लॉन्ग टाइम लेता है हील होने के लिए, राइट. सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर द healing. So these are the so many reasons why there is a problem during the diabetic foot. So we already know what is the difference between type 1 and type 2. Onset sudden वाला है type 1 और जो gradual वाला है that is type 2. So ये हो गया आपका type 1, type 2. Management हम लोग बाद में देखते हैं. Now what are the causes? What are the causes of diabetes mellitus, right? So next we will see the causes of diabetes mellitus. Next we will see the causes of diabetes mellitus. What are the causes of diabetes mellitus? हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस. टाइप 1 एंड टाइप 2. लॉस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन. उन्हें इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो आपके बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो है पैंक्रियाज में के, इनका लॉस होना या नॉन फंक्शनिंग हो जाना. दिस इज योर टाइप 1. टाइप 1 का पहला है, राइट. Second cause why there is a type 1, okay, so majority, right, majority is immune mediated, okay. So majority जो है type 1 है, it is a immune
mediated. It is the immune mediated. What is immune mediated? Immune mediated in which the T lymphocyte. Okay, so this T lymphocyte is very important. You already know T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte, they produce, both lymphocyte produce in the bone marrow, but B lymphocyte produce and well developed, okay, and functional in bone marrow. And what about the T lymphocyte? It is produced in a bone marrow but become functioning or differentiated in the thymus gland. So ये हो गया आपका difference between T lymphocyte. Why it is called immune mediated is one mediated? It is the one of the reason. क्या होता है कि T cell जो है, जो T cell है बेसिकली वो ऑटो इम्यून अटैक करते हैं. ऑटो इम्यून अटैक ऑफ द टी सेल, अपने ही टी सेल अपनी इम्यून सेल पे अटैक करते हैं. सो इम्यून मेडिएटेड कौन सा कॉज है? दैट इज अ ऑटो इम्यून अटैक. बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, ये जो बीटा सेल है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे. बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. अगर बीटा सेल ही नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं रहेगा, राइट. एंड देन देयर इज अ डायबिटीज मेलाइटस, राइट. सो ये हो गया आपका व्हाट आर द कॉजेस. ओके, सो इम्यून मेडिएटेड और समटाइम वी डोंट नो द रीजन, दैट इज अ इडियोपैथिक. सो ये एक हो गया. सेकेंड एंड थर्ड वन इज इडियोपैथिक. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट. क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस में? अनप्रेडिक्टेबल हाई ब्लड शुगर रहेगा, कीटोसिस होगा, राइट. सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के, राइट. सो नाउ वी विल गो फॉर type 2. Now we'll go for type 2. Here there is no problem in insulin, but there is a development of resistance to insulin. इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है, राइट. यानी इंसुलिन, यहाँ तो इंसुलिन नहीं है लेकिन यहाँ इंसुलिन है, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस तैयार हो गया, राइट. सो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस पहले तो सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, फिर धीरे धीरे अगर उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ रिड्यूस सिक्रीशन ऑल्सो. बॉडी के जो सेल है, हमारे जो बॉडी के सेल है, दे फेल टू रिस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ इंसुलिन. यानी हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल सेल है वो इंसुलिन का एक्शन ही नहीं होने देंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेजिस्टेंट, राइट. नाउ हियर बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन. यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी ने इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर दिया, राइट. बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ओके. देन ग्लूकोज स्टार्ट अपीयरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके, आफ्टर द डाइजेशन. तो ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, स्टिल बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंट देयर इज अ, और वो जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल में वो यूज ही नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज ब्लड शुगर. तो ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, राइट. नॉर्मली ओके, ये जो इंसुलिन है, ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये इंसुलिन वो उसका जो रिस्पॉन्स है टू टेक द ग्लूकोज एंड एक्ट एज अ कैरियर एंड गिव दैट ग्लूकोज टू द सेल, ये जो उसका जो काम है वो काम नहीं कर पा रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल दैट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ये हो गया आपका डायबिटीज मेलाइटस. इसीलिए लेवल अप क्या रहेगा ग्लूकोज में, ओके, धीरे धीरे आपको लेवल फ्लक्चुएशन नजर आएगा, राइट. सो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट. एंड स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे इंसुलिन सिक्रीशन ही नहीं होगा तो हमें बॉडी में इंसुलिन नहीं दिखेगा. सो वी विल कंफ्यूज कि टाइप 1 है या टाइप 2 है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंट डिफेक्ट इज नॉट रियली लाइक फाइंड आउट कैसे करना है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से हो रहा है या बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से हो रहा है. सो टाइप 2 इट इज अगेन कॉमन, ओके. सो इट इज वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस. तीसरा हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हमको ऑलरेडी पता है, राइट. इट इज जस्ट लाइक टाइप 2, ओके, है बट रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है. वो पूछते हैं कभी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जैसा है या टाइप 2 जैसा. यहाँ इंसुलिन है वहां पर, ओके, जस्ट रिजेंबल लाइक द टाइप 2, ओके. सो प्रेगनेंसी में रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज और फुल्ली ट्रीटेबल है. यू डोंट हैव टू वरी, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगा, द ब्लड शुगर विल बी कंट्रोल, बट इफ देयर इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इट डजंट मीन कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. इट कैन डैमेज द हेल्थ ऑफ बेबी, इट कैन डैमेज द बेबी की जगह हम लोग फीटस बोलते हैं. इट कैन डैमेज टू द फीटस, राइट. क्या हो सकता है, ओके. सो बेबी में
ओवरवेट हो जाएगा, राइट, ओवरवेट ऑफ द बेबी, हाई बर्थ वेट रहेगा, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द, क्या हो सकता है, ओवर वेट बेबीज होंगे, right, because of the gestational diabetes mellitus, right. And there is one more thing which is usually found in case of the baby born with the mother, pregnant mother with the gestational diabetes mellitus, जो fetus के lung में एक surfactant रहता है, right, that is called a surfactant. ये जो अल्वियोलाई है, दिस अल्वियोलाई में एक सर्फेक्टेंट रहेगा, राइट. तो ये सर्फेक्टेंट नॉर्मली रहता है, राइट. सर्फेक्टेंट है करके जैसे व्हेन बेबी कम्स आउट, राइट, देयर इज अ एयर गोज इनसाइड एंड देन देयर इज अ ओपनिंग ऑफ दिस अल्वियोलाई बिकॉज ऑफ दिस सर्फेक्टेंट एंड एयर गोज इनसाइड, राइट. जिसको हम इसीलिए तो बेबी को ये करते पीछे से, सो दैट द बेबी विल क्राई. द क्राई ऑफ बेबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द बेबी क्राई, ओके, the air goes in and the alveoli get open and then there is exchange of gases. तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, सर्फेक्टेंट, फीटल अल्वियोलर सर्फेक्टेंट. इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा या इनहिबिट इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. यानी इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ट्रीटेबल है, बट बर्थ वेट ज्यादा हो सकता है बेबी का और बेबी कैन लैंड अप इनटू ARDS. ओके, सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बेबी जा सकता है, राइट. क्यों जा सकता है, बिकॉज इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देयर इज अ इनहिबिट फीटल सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन. जो सर्फेक्टेंट है वो नहीं होगा. दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, राइट. सो ये हो गया आपका what are the types of diabetes mellitus, what are the causes, what are the signs, symptoms. पैथोफिजियोलॉजी भी हम लोगों का हो गया, क्या होता है बेसिकली, कैसे हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, कैसे हार्मोन रेगुलेट करता है, राइट. फिर कैसे उसको हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. लीवर का हम लोग यूज कर सकते हैं, मसल का हम लोग स्टोरेज नहीं यूज कर सकते. दिस इज ऑल द पैथोलॉजी भी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, दैट इज कॉल्ड इटियोपैथोजेनेसिस हो गया. उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो गए, राइट. इमरजेंसीज भी हो गई. नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट, हाउ विल यू डायग्नोज, हाउ विल यू डायग्नोज. तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, हाउ विल यू डायग्नोज एंड हाउ विल यू ट्रीट. दैट इज अ फार्माकोलॉजी पार्ट. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट.